زیادہ گرم تھا، یہاں تک کہ میں جس کمرے میں موجود تھی وہ کمرہ بھی اور اس کی دیواریں بھی گرمی سے دہک رہی تھیں۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میں کسی تندور میں بیٹھی ہوں۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے میرے مزاج پر بھی بہت برا اثر پڑ رہا تھا، یہاں تک کہ اس کمرے میں ایک واحد کھڑکی تھی اور وہ بھی بند رکھی جاتی تھی۔ ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے میں ایک کال کوٹری میں بند ہوں، سانس لینا دشوار ہو جاتا تھا۔ یہ میری زندگی کے بدترین دن تھے۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا نہ جانے مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی تھی جو مجھے اس کمرے میں بند کر دیا گیا تھا۔ پورے 2 دن ہو گئے تھے اور مجھ پر یہ ظلم جاری تھا۔ میری غلطی کیا تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے اپنا قصور معلوم نہیں تھا۔ میرا دل گہرے صدمے میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن لوگ نہ جانے کیوں اتنے ظالم ہو جاتے ہیں کہ انہیں کسی کے جذبات کا کوئی خیال نہیں رہتا، اور یہاں تو سراسر مجھ پر ظلم کیا جا رہا تھا۔ چچی جان روز آتی تھی اور مجھے کھانا دینے کے ساتھ دوائی کھلانے کی کوشش کرتی۔ وہ زبردستی میرے جبڑے کو اپنے ہاتھوں میں لیتی اور میرے منہ میں دوائی ٹھوسنے کی کوشش کرتی، لیکن میں ان کی کوشش کامیاب نہیں ہونے دیتی تھی۔ میں اپنا منہ سختی سے بند کر لیتی تھی اور اس وقت تک بند رکھتی جب تک چچی جان دوبارہ کمرے سے نہ چلی جاتی۔ جیسے ہی چچی جان کمرے سے نکلتی میں وہ دوائی اگل دیتی اور اپنے کپڑوں سے صاف کر لیتی۔ اس طرح سے کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ میں دوا نہیں لیتی ہوں۔ سب لوگ مجھے پاگل سمجھ رہے تھے، لیکن میں پاگل نہیں تھی۔ مجھے اچھی طرح علم تھا کہ چچی جان مجھے کون سی دوا کھلانا چاہ رہی ہیں۔ اب میں بری طرح تھک چکی تھی اور اس قید سے نجات چاہتی تھی۔ پوری رات میں چیختی رہی تھی، چلاتی رہی تھی، لیکن کسی نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہاں کوئی تھا ہی نہیں جو میری بات سنتا۔ میں اس چھوٹے سے حبس زدہ کمرے میں اپنی زندگی کے بدترین دن کاٹ رہی تھی۔ پوری رات رو رو کر میرا حال برا ہو گیا تھا۔ رات سے ہی میرے سر میں درد کی شدید ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، یہاں تک کہ میں کھڑکی کے عین نیچے سو گئی تھی۔ صبح میری آنکھ کھل گئی تھی اور بہت جلدی کھلی تھی، کیونکہ ابھی صحیح طرح سے پورا اجالا نہیں پھیلا تھا۔ کہیں کہیں اندھیرے کی سیاہی موجود تھی، لیکن میرے اٹھنے کی واحد وجہ میرے منہ پر گرنے والا پانی تھا، چونکہ میں کھڑکی کے عین سامنے ہی روتے روتے سو گئی تھی، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود پر ٹپ ٹپ پانی برستا پایا تھا۔ اس نے بے اختیار میری آنکھیں کھول دی تھیں، اور جیسے ہی میں نے کھڑکی کی طرف دیکھا تو دنگ رہ گئی تھی۔ وہ کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور اسی میں سے بارش کا پانی ٹپک رہا تھا، اس لیے 2 دن کی گرمی اور حبس کی وجہ سے اب بارش برس رہی تھی۔ میرے حواس ایک دم سے کام کرنا شروع ہو گئے تھے۔ رات بھر تو میں چیختی رہی تھی اور چلاتی رہی تھی، تو مجھے دیکھنے ضرور کوئی نہ کوئی کمرے میں آیا تھا اور بے دہانی میں کھڑکی کھلی رکھ کر چلا گیا تھا۔ میں چونکہ درد سے بے حال تھی اس لیے بہت گہری نیند میں سو گئی تھی اور مجھے کسی کے کمرے میں آنے کا پتہ نہیں چلا تھا، لیکن اب میرے لیے یہ واحد راستہ تھا کہ میں اس جہنم سے نکل سکوں، اس لیے میں نے ایک لمحہ لگائے بغیر کھڑکی سے چھلانگ لگائی تھی۔ میں اپنی سی کوشش ضرور کرنا چاہتی تھی، اب میں کامیاب ہوتی ہوں یا ناکام یہ میری قسمت پر تھا، لیکن میں کوشش کرنا چاہتی تھی اور میں نے کوشش کی تھی۔ میں نے جیسے ہی چھلانگ لگائی تھی تو دوسری طرف فاصلہ کافی تھا اور میرے گھٹنے پر کافی چوٹ آئی تھی، لیکن جو چوٹ میرے دل پر 2-3 دن سے لگ رہی تھی اس کا اور اس چوٹ کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ میں نیچے دیکھتے ہی فوراً اٹھی تھی اور سر پر دوڑ لگا دی تھی۔ حیرت انگیز طور پر حویلی کا گیٹ بھی کھلا ہوا تھا۔ مجھے اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے خود کو پرسکون کیا تھا اور پھر دوبارہ دوڑ لگا دی تھی۔ میں بھاگتی رہی تھی یہاں تک کہ میرے پاؤں چھلنی ہو گئے تھے۔ کچی پکی زمین، چھوٹے چھوٹے کنکر بار بار میرے پاؤں میں لگ کر انہیں زخمی کر رہے تھے، لیکن مجھے پرواہ نہیں تھی۔ میں یہاں سے دور، بہت دور جانا چاہتی تھی۔ میں ظالم لوگوں میں گھر چکی تھی، انہوں نے مجھے پاگل ثابت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، یہاں تک کہ وہ تو مجھے نہ جانے کون کون سی قسم کی دوائیاں دیتے تھے۔ میں اب ان سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی تھی۔ میرا کوئی سہارا تو موجود نہیں تھا، لیکن مجھے اللہ کا آسرا تھا، اسی کے آسرے پر میں دوڑی چلی جا رہی تھی، یہاں تک کہ ایک ہرے بھرے کھیت پر میری نظر پڑی تھی۔ اب میرے پاؤں بہت زیادہ دکھ رہے تھے اور مزید دوڑنا میرے لیے ناممکن سا تھا۔ میں سوچے سمجھے بغیر اس کھیت کے اندر چھپ گئی۔ ویسے بھی ابھی گاؤں ختم نہیں ہوا تھا، ابھی تو صرف میں چند میل ہی بھاگ سکی تھی۔ 2 دن سے کھانا نہ کھانے کی وجہ سے میرے اندر بہت زیادہ کمزوری بھی موجود تھی۔ مجھے کسی بھی حالت میں اس قید خانے سے نکلنا تھا اور اپنی جان بچانی تھی۔ میں گہری سانس بھر کر خود کو پرسکون کر رہی تھی۔ میں نے فصلوں کے اندر خود کو اچھی طرح چھپا لیا تھا تاکہ کسی کی بھی نظر میری طرف نہ پڑے۔ ابھی مجھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مجھے اپنے پیچھے کسی کڑکڑاہٹ کا احساس ہوا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اور خوف سے میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ میں نے بے چین ہوتے دل پر ہاتھ رکھ کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی تھی اور آہستہ آہستہ آگے بڑھ کر دیکھنے کی کوشش کی تھی کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ عموماً کھیتوں میں جانور بھی گھس آتے تھے، لیکن یہ آواز تو کسی اور ہی چیز کی تھی، جیسے کوئی کھدائی کی جا رہی ہو یا پھر کوئی چیز پٹک کر توڑی جا رہی ہو۔ میں نے ڈرتے ڈرتے تھوڑا سا آگے کھسک کر آواز کی سمت میں دیکھا اور میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ یہ منظر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، چونکہ میں صبح کی سیاہی میں بھاگی تھی اور جب تک میں کھیتوں میں چھپی تھی تب تک ہر طرف اجالا چھا گیا تھا، اس لیے میں یہ منظر واضح طور پر دیکھ سکتی تھی، اس میں کسی قسم کے شک و شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ میرے پیروں تلے سے زمین نکالنے کے لیے کافی تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ لوگ اس حد تک گر سکتے ہیں۔ میں نے ان کی اس حرکت کو دیکھ لیا تھا۔ اب میں نے سمجھ لیا تھا کہ یہ سب میری جان کے دشمن کیوں بنے ہوئے تھے۔ میرا نام حوریہ احمد ہے اور میں اپنے والدین کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی ہوں۔ میری زندگی کی کہانی بہت عجیب ہے۔
इतनी अजीब कि उसे मैं किसी से बयान नहीं करना चाहती थी, लेकिन दिल के हाथों मजबूर होकर मैं अपनी ये कहानी बयान कर रही हूँ। मैंने शुरू से ही अपने घर में 2 ही रिश्तों को पाया था, एक अपनी माँ को और एक अपने बाप को। इसके अलावा मुझे किसी रिश्ते से कोई वाकफियत हासिल नहीं थी। मैं स्कूल जाती थी और जब वहाँ पर मेरी दोस्तें अपनी खाला, मामू और चाचा के बारे में बातें करती थी, तब मैं घर आकर रोती थी और अपनी अम्मी से सवाल करती थी कि मेरे ये सारे रिश्ते कहाँ हैं। तब अम्मी मुझे टाल मटोल से जवाब दे दिया करती थी। क्योंकि मैं बच्ची थी, इस वजह से उनकी बातों में आ जाती थी। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, तब तक अंदाजा हो गया कि मेरे पास ये रिश्ते क्यों मौजूद नहीं है। इसकी वजह एक ही थी कि मेरे वालिदैन ने पसंद की शादी की थी। उन दोनों के घर वालों ने उन्हें निकाल दिया था। तब मुझे समझ आ गया था कि मेरे पास रिश्तों की कमी क्यों है, और जिस दिन मुझे इस हकीकत का इल्म हुआ था, उस दिन से मेरे अंदर रिश्तों की तलब खत्म हो गई थी। क्योंकि जिन लोगों ने मेरे इतने नरम दिल माँ और बाप को घर से निकाल दिया था, मैं उनकी तलब अपने दिल में क्यों रखती। ऐसा नहीं था कि मेरे माँ बाप ने उन रिश्तों के हवाले से मेरे अंदर नफरत भर दी थी, लेकिन फिर भी मैं जब चुपके चुपके उन दोनों को आंसू बहाते हुए देखती थी, तब उनके आंसू मेरे दिल पर गिरते थे और मैं समझ जाती थी कि आंसू घर वालों के लिए बहाए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ उनके घर वाले थे जिन्होंने उनसे कभी पलट कर 18 वर्षों में एक बार भी पूछने की कोशिश ही नहीं की थी। फिर एक दिन न जाने बाबा क्यों बहुत उदास थे। मैं इसकी वजह नहीं जान सकी थी। मैंने अम्मी से जब इसके मुताल्लिक पूछा तो उन्होंने मुझे बताया था कि अबू जान को उनके भाई की तरफ से खत भेजा गया है और उन्हें वो लोग वापस बुला रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी दादी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो अपने आखिरी वक्त में अपने सबसे बड़े बेटे को याद कर रही हैं। चुनाचा उनकी तरफ से खत भेजा गया है। अबू उदास थे कि एक तो 18 वर्षों में उन्होंने पूछना गवारा नहीं किया था, अब न जाने ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी जो उन्हें बुला रहे थे। ये बात अब वो अच्छी तरह जानते थे, उन्होंने हमें नहीं बताया था। अम्मी भी इस बात से वाकिफ नहीं थी। अब्बू ने जब वो घर छोड़ा था तो सब कुछ सिफर से शुरू किया था। उन्होंने अपने दोस्त से उधार लेकर कारोबार किया था और अल्लाह ने उस कारोबार में इतनी ज्यादा बरकत डाल दी थी कि अब्बू की 2 फैक्ट्रियां उस वक्त मौजूद थी, यानी हमारा शुमार अच्छे खासे अमीर घराने में होता था। वैसे भी मैं अपने घर वालों की अकलौती बेटी थी, चुनाचा जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। अम्मी ने अब्बू को बहुत ज्यादा तसल्ली दी थी और कहा था कि जब सारी उम्र उनकी याद में आंसू बहाते रहे हैं, तो अब जो लोग आपको बुला रहे हैं तो आपको उदास होने के बजाय उनसे मिलने जाना चाहिए। लेकिन अब्बू अपने घर वालों को अच्छी तरह जानते थे, इसलिए वो शशो पंच का शिकार थे। वो हवेली के रहने वाले थे। उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि हवेली वाले कभी भी अपना उसूल नहीं बदलते। इसी वजह से वो डरे हुए थे और उदास थे। लेकिन अम्मी ने उन्हें चलने के लिए मना ही लिया था। वो मुझे और अम्मी को लेकर वहां पर चले गए थे। हवेली पहुंचने पर हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया था और मैं इन सब के लिए तैयार न थी। वहां जाकर मुझे पता चला था कि मेरे वहां बहुत से रिश्ते मौजूद थे। वहां पर मेरी 2 फुप्पियां थीं जो उम्र में अब्बू से बड़ी थीं। अब्बू सबसे बड़े बेटे थे और अब्बू के बाद 2 छोटे भाई थे, यानी मेरे 2 चाचा थे। दोनों की शादियां हो चुकी थीं और सब बाल बच्चों वाले थे, और उनके बच्चे मेरे ही हम उम्र थे और कुछ मुझसे भी बड़े थे। अभी हमें यहाँ आए 2 ही दिन हुए थे कि मैंने अब्बू को दादी के कमरे से गुस्से से निकलते हुए देखा था। मैं और अम्मी फौरन परेशान हो गए थे और अब्बू के पीछे लपके थे। अब्बू ने हम दोनों को गाड़ी में बिठा लिया था और गाड़ी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रही थी। अम्मी ने लाख पूछना चाहा था कि क्या हुआ है, लेकिन अब्बू ने कुछ नहीं बताया था। गुस्से से उनके माथे की रगें फूली हुई वाज़ेह तौर पर नजर आ रही थी। मैंने अब्बू से पूछा था कि अब्बू, जब तक आप हमें नहीं बताएंगे हमें कैसे पता चलेगा कि आपकी और दादी की क्या बात हुई है। तब अब्बू ने कहा था तो सिर्फ इतना कि बेटा, हवेली वालों को मैं जानता हूँ, उनका मुझे बुलाने का मकसद एक ही था, और अब वो मकसद उन्हें हासिल नहीं हुआ है तो ये लोग ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं। इसी वजह से तुम लोगों का यहाँ रहना मुनासिब नहीं, इसीलिए हम अपने घर वापस जा रहे हैं। अभी अब्बू ये बात कर ही रहे थे कि सामने से एक ट्रक आया था और गाड़ी तेज रफ्तारी के बाइस उस वक्त उसमें जा लगी थी। उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा था कि क्या हुआ है। जब होश आया था तो खुद को हवेली में पाया था। मैंने बेइख्तियार अम्मी अब्बू को पुकारा था, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। न अम्मी थी न अब्बू थे। इसके अलावा उनके सारे रिश्ते मौजूद थे। मैंने उन सबसे अम्मी अब्बू के बारे में पूछा था और उन्होंने मुझे जो जवाब दिया था उसे सुनकर मुझे ऐसा लगा था कि मैं अब दोबारा कभी सांस नहीं ले पाऊंगी। 18 वर्षों तक मुझे प्यार देने वाले, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करने वाले, मुझे मोहब्बत से पाल पोस कर बड़ा करने वाले इस दुनिया में नहीं रहे थे। वो कार हादसा बहुत भयानक था और उसमें मेरे वालिदैन जाबहक हो गए थे और मैं हैरत अंगेज तौर पर बच गई थी। मुझे कुछ चोटें आई थी जिनकी मरहम पट्टी कर दी गई थी और फिर ये लोग मुझे हवेली दोबारा वापस ले आए थे। मैंने उनसे कह दिया था कि मुझे अपने घर वापस जाना है। तब उनकी गैरत जाग उठी थी और उन्होंने मेरे जाने की जिद पर मुझे कमरे में बंद कर दिया था। वो न जाने क्या साबित करना चाहते थे। चची जान आती थी और मुझे कोई दवाई खिलाना चाहती थी। मैंने चीख चीख कर उन सबको कहा था कि मैं अपने घर वापस जाऊंगी और इस जाहिलाना घर में कभी नहीं आऊंगी। उन लोगों ने जैसे मुझसे कोई बैर ही बांध लिया था। उन्होंने मुझे जैसे काल कोठरी में बंद कर दिया था और वहां किसी कैदी की तरह खाना पानी पहुंचा दिया करते थे। चंद दिनों पहले तक जिंदगी बहुत हसीन थी। मैंने अपनी 18वीं सालगिरह मनाई थी और अब्बू ने धूमधाम से अपने तमाम दोस्तों को बुलाया था। वो दिन मेरी जिंदगी का यादगार दिन था, लेकिन चंद ही दिन बाद मैं अपनी जिंदगी के बदतरीन दिन गुजार रही थी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ ये सब भी हो सकता है। वो लोग किसी तरीके से भी मुझे रिहा करने के लिए राजी नजर नहीं आ रहे थे।
बकौल उनके मैं उनकी वारिस थी, वो मुझे ऐसे कैसे अकेले रहने देते, जबकि मुझे मालूम था कि मैं जब तक यहाँ रहूंगी अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले पाऊंगी। ये हवेली और उसके बोसीदा उसूल मुझे जीते जी मार देंगे, इसलिए मैंने भी अपनी जिद न छोड़ी थी और उन्होंने मुझे पागल साबित करने की कोई कसर न छोड़ी थी। यहाँ तक कि चची जान तो मुझे कोई दवाई भी खिलाना चाहती थी। मुझे ये मालूम नहीं हो सका था कि अब्बू की और दादी की असल में बात क्या हुई थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे मालूम हो रहा था। और अब्बू के गुस्से की वजह जो इस कार हादसे का सबब बनी थी वो ये थी कि दादी ने बिस्तरे मर्द पर भी अब्बू को पसंद की शादी के ताने देने से जरा भी नहीं घबराई थी और उन्हें मोहब्बत की शादी करने और वालिदैन को छोड़ने के इस कदर ताने दिए थे कि अब्बू बेहद गमगीन हो गए थे। उन लोगों ने सिर्फ यहीं तक नहीं किया था बल्कि उन्होंने चची जान के माजूर बेटे के लिए मेरा रिश्ता मांग लिया था। और वो ये सब क्यों कर रहे थे मुझे अच्छी तरह मालूम था। वो सब जायदाद के हुसूल के लिए कोशा थे। हालांकि इतनी बड़ी हवेली, नौकर चाकर, रुपया पैसा, उनके पास सब कुछ था, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि वो सब कुछ अब्बू के नाम था। दादा चूंकि अपने सबसे बड़े बेटे से बहुत मोहब्बत करते थे और काफी अरसे तक अब्बू के बाद उनकी कोई औलाद भी नहीं हुई थी। सिर्फ 2 बेटियां थीं और अब्बू के काफी अरसे बाद चचा पैदा हुए थे। चुनाचा दादा ने अपनी जिंदगी में ही अपनी सारी जायदाद अब्बू के नाम कर दी थी और फिर जब अब्बू ने पसंद की शादी की थी और घर वालों ने उनको निकाल दिया था तब भी ये जायदाद उन्हीं के नाम रही थी। इतने अरसे बाद अब्बू को खास तौर पर बुलाने की भी यही एक वजह थी कि दादी बंटवारा करना चाहती थी, क्योंकि दोनों चाचा उनके गले पड़ गए थे कि वो हवेली का बंटवारा करें, जबकि दादा ने उन दोनों चचा की पैदाइश के बाद जमीनें उनके नाम कर दी थी। लेकिन उनके माल की हविस खत्म नहीं हो रही थी और वो हवेली जो अब्बू के नाम थी और अब्बू ने मेरे नाम कर दी थी, वो सब मिलकर इसलिए मेरे पीछे पड़े हुए थे। चाचा जान चाहते थे कि मेरे अबनॉर्मल बेटे से शादी करने के बाद जायदाद उनके बेटे के नाम पर ट्रांसफर हो जाए, और वो तो था ही अबनॉर्मल। उससे साइन करवा कर वो लोग सारी जायदाद दोबारा से अपने नाम कर लेंगे। जब से मुझे पता चला था मेरा दिमाग माउफ हो गया था। मैं पूरी रात चीखती रही थी, चिल्लाती रही थी और उसके बाद वहीं रोते रोते सो गई थी। मुझे अपने वालिदैन की शिद्दत से याद आती थी। उनका साया जब तक मेरे सर पर कायम था तब तक जिंदगी बहुत हसीन थी, लेकिन जैसे ही वो लोग इस दुनिया से रुखसत हुए थे, जिंदगी किसी जालिम बादशाह की तरह मुझे फांसी के घाट पर लटकाने के लिए बेताब नजर आती थी और मेरी कहानी के तमाम लोग मुझे जल्लाद दिखाई देते थे। अगर देखा जाए तो हवेली के तमाम लोग एक तरफ थे और मैं 18 साल की एक धान-पान सी लड़की एक तरफ थी। मुझे उनकी हवेली से कोई गर्ज नहीं थे। अगर वो लोग तरीके से बात करते तो मैं हवेली आज के आज उन्हें वापस कर देती, लेकिन वो सिर्फ हवेली को वापस हासिल नहीं करना चाहते थे। उनके मकासद कुछ और थे जो मैं अब तक नहीं जान पाई थी। मिलाकर कुदरत को मुझ पर थोड़ा बहुत रहम आ गया था और किसी तरह से उस काल कोठरी की खिड़की खुली रह गई थी और मैंने पागल होने का भरपूर नाटक करते हुए उन लोगों के जहन में ये बिठा लिया था कि मैं इन 3 दिनों की कैद में अपने हवास खो चुकी हूँ। और फिर वो लोग अपने हवास कायम न रखते हुए उस कमरे की खिड़की खुली रखकर चले गए थे और मुझे मौका मिल गया था। मैं वहां से भाग गई थी और खेतों में छुप गई थी, लेकिन वहां जो मंजर मैंने देखा था वो मुझे पूरी तरह हिलाने के लिए काफी था। मैंने वहां खेतों में गड़गड़ाहट होने पर किसी जानवर के शुबे पर झांक कर देखा था और जो कुछ मैंने देखा था उसे देखकर मैं दंग रह गई थी। वहां कोई और नहीं, चची जान मौजूद थी और वो जमीन खोद रही थी। मैं फटी फटी निगाहों से एक तरफ को छुपी उनकी ये हरकत देख रही थी। इसके बाद उन्होंने एक अच्छा खासा गड्ढा खोद लिया था और वहां जो कुछ उनके पास सामान मौजूद था एक गठरी में से निकाला था और जैसे ही मेरी उस सामान पर नजर पड़ी थी मेरी चीख बुलंद होते होते रह गई थी। मैंने बमुश्किल दोनों हाथ अपने मुंह पर रखकर अपनी चीख को रोका था। चची जान के पास जेवरात का एक गठरा मौजूद था जो वो खेतों में दफन करने आई थी। वो सारे जेवरात मेरे देखे हुए थे और वो सारे जेवरात मेरी माँ के थे जो मेरी माँ ने मेरे नाम कर दिए थे, और वो सारे जेवरात तो कराची वाले घर में मौजूद थे। तो फिर ये गाँव में उनके पास कैसे आए थे? मैं हैरत से दंग होकर रह गई थी। ये क्या माजरा था? मैं बिल्कुल दम साधे उन्हें देख रही थी। वो अपनी धुन में अपने काम किए जा रही थी। ये सारे जेवर मेरे अब्बू ने अम्मी को बनवा कर दिए थे और अम्मी ने सारे जेवर मुझे तोहफतन दे दिए थे। इन जेवरात पर मेरा हक था, तो फिर ये चची जान के पास कैसे आए थे? क्या अम्मी अब्बू की वफात के बाद वो लोग मेरे घर गए थे और वहां से सब कुछ उठा कर ले गए थे? वहां तो घर की फाइल भी पड़ी हुई थी और अब्बू की कराची शहर में मौजूद जायदादों की फाइलें भी मौजूद थी जो कि वहां पर पड़ी हुई थी। अब मुझे समझ आ गई थी कि ये लोग मुझे कैद क्यों करना चाहते थे। ये लोग मुझे कैद करके मुझे पागल बनाने की दवाइयां खिला रहे थे और अपने माजूर बेटे से भी इसीलिए ब्याहना चाहते थे ताकि एक अबनॉर्मल कपल साबित करके दस्तखत करवाकर और मेरी ज़हनी हालत को गैर मुस्तहकम दिखाकर वो सारी जायदाद आपस में बांट लेना चाहते थे। मैं हवेली तो उनको अब दे देना चाहती थी, लेकिन जिस तरह वो मेरे बाप की जायदाद पर भी अपना हक समझ रहे थे वो मेरे गुस्से को हवा देने के लिए काफी था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं चची जान को उसी वक्त कच्चा चबा जाऊं। मुझे तो ये भी मालूम नहीं था कि मैं इस वक्त कौन से खेतों में मौजूद हूँ और ये खेत किस तरफ जाता है। चची जान तो अपना काम पूरा करके राजदारी से इधर उधर देखने के बाद चली गई थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किससे मदद मांगूंगी। मैं इस भरी दुनिया में अकेली थी और मेरा अगला कदम क्या था ये भी मुझे नहीं पता था। मैं बस उस घर से फरार हो गई थी, मेरे लिए यही काफी था। थोड़ी देर बाद मैं इत्मीनान कर लेने के बाद कि अब खेतों के पास कोई भी मौजूद नहीं, मैं वहां से उठ खड़ी हुई थी और थोड़ी देर चलने के बाद बस स्टॉप आ गया था। मैं कुछ भी सोचे समझे बगैर बस में सवार हो गई थी।
मुझे नहीं मालूम था कि बस मुझे कहाँ ले जाने वाली है और मेरी मंजिल क्या है। बस अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी और मुझे जैसे एकदम से होश आया था कि मैं पूछ ही लूं कि बस किस तरफ जा रही है। तब मुझे पता चला था कि ये बस तो फैसलाबाद जा रही थी और मेरी मंजिल तो कराची थी। अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी सिवाय फैसलाबाद आ जाने के इंतजार के। बस रुक चुकी थी और मेरे पास किराए तक के पैसे नहीं थे। मैंने अपने हाथ से एक चूड़ी उतार कर ड्राइवर के हाथ में थमा दी थी। इस वक्त मैं बेयारो मददगार फैसलाबाद की सड़कों पर चल रही थी। मुझे नहीं मालूम था कि मेरा अगला कदम क्या होगा। सामने ही मुझे पुलिस स्टेशन नजर आया था और मेकान की अंदाज में मेरे कदम वहां की तरफ बढ़ गए थे। वहां थाने में लोगों का हुजूम था। हर कोई अपनी शिकायत करने मौजूद था। मैं वहां रखी एक कुर्सी पर बैठ गई थी और रश के कम होने का इंतजार कर रही थी। यहाँ तक के कई घंटे बीत चुके थे और रश कम होकर अब खत्म हो चुका था। अब वहां मौजूद अमले ने मुझे नोटिस किया था और फिर मुझसे पूछा था कि बीबी आपको क्या काम है, हम कब से देख रहे हैं आप यहीं पर मौजूद हैं। तब अचानक खुद ब खुद मेरे आंसू निकलना शुरू हो गए थे और अमला मेरे गेट जमा होना शुरू हो गया था। मैंने चादर के पल्लू से अपने आंसू साफ किए थे और धुंधली आंखों से सर उठाकर अमले को देखा था। इसी असना में किसी की गरजदार आवाज आई थी और सारा अमला दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गया था। मुझे एक कमरे में बुलाया गया था। वहां सिर्फ पुलिस ऑफिसर और उनके दोस्त मौजूद थे। उनके दोस्त मुझे बैरिस्टर लग रहे थे क्योंकि उन्होंने वकील का लिबास पहना हुआ था। मैं सिर्फ अंदाजा ही लगा सकी थी। उनके सवाल करने पर मैंने उन्हें बताया था कि किस तरह मुझे हवेली में महज जायदाद के वसूल के लिए हद से बेजा में रखा गया। उन्होंने मेरी शिकायत तो दर्ज कर ली थी लेकिन अब मैं कहाँ जाती मेरा कोई ठिकाना नहीं था। मैंने उन्हें बता दिया कि मैं कराची में रहती हूँ और मैं वहां जाना चाहती हूँ। उस ऑफिसर ने मुझे यकीन दहानी करवाई थी कि वो लोग मुझे कराची रवाना कर देंगे और इस अरसे में उन्होंने मुझे एक हॉस्टल में रुकवा दिया था। उनके मुताबिक जरूरी कार्रवाई के बाद ही मैं कराची जा सकती हूँ। मैं यहाँ हॉस्टल में रह रही थी और आज दूसरा दिन था। मेरी रूममेट एक सीधी सादी सी लड़की थी। वो अपने काम से काम रखती थी और मुझसे कुछ ना पूछती थी, लेकिन न जाने क्यों मुझे उस लड़की से एक अजीब सी उनसियत महसूस होती थी। आज मुझे यहाँ आए हुए तीसरा दिन था और वो सुबह से कमरे में मौजूद न थी, वरना वो सुबह सवेरे यूनिवर्सिटी के लिए चली जाती थी। ये मैंने अंदाजा लगाया था। मेरा दिल आज के दिन बार बार भरा जा रहा था। मुझे बार बार अपने माँ बाप की याद आ रही थी। मेरी जिंदगी ने मुझे किस तरह पर आकर खड़ा कर दिया था। उसने मुझे यूं रोते देखा तो मुझसे बातचीत करने की कोशिश की थी और मुझे तो जैसे किसी सहारे की जरूरत थी। मैंने रोते रोते उसे सब बता दिया था। तब उसने मुझे जो कहा था मुझे उम्मीद की वाहिद किरण महसूस हुई थी। उसने मुझसे कहा था कि मेरे वालिद साहब बैरिस्टर हैं, तुम्हारी कुछ मदद कर सकते हैं। पुलिस ऑफिसर ने मुझे 2 दिन के अंदर कराची भेजने का वादा किया था, लेकिन अब तीसरा दिन भी खत्म होने वाला था। उनका वादा पूरा होता मुझे नजर नहीं आ रहा था। तब उस लड़की ने मेरी मदद की थी और कहा था कि वो अपने वालिद साहब से बात करेगी और आप उनके साथ कराची रवाना हो जाइएगा। वो अक्सर कराची आते जाते रहते हैं और अदालतों के चक्कर उनके लिए एक आम सी बात है। वो वकील हैं और आपके केस को भी अच्छी तरह देख लेंगे। मैंने उसका बेहद शुक्रिया अदा किया था और उसने घर फोन करके अपने वालिद साहब को बुला लिया था। सामने मौजूद शख्सियत को देखकर मैं हैरान रह गई थी। ये वही शख्स थे जो मुझे उस दिन थाने में पुलिस ऑफिसर के साथ नजर आए थे। अपनी बेटी की जबानी जब मेरी कहानी उन्होंने सुनी तो उन्होंने मेरे सर पर दस्ते शफकत रखा था और उसी दिन मुझे अपने साथ कराची लेकर आ गए थे। उनके साथ उनकी बेगम साहिबा भी मौजूद थी। शायद इसलिए कि मैं कोई डर महसूस न करूं, इसलिए उन्होंने अपनी बेगम को भी अपने साथ चलने के लिए राजी कर लिया था। उन्होंने ऐन मुझे मेरे घर के पते के सामने उतारा था। मैंने उन्हें अंदर आने का कहा था और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला था यादों का एक दरीचा खुल गया था। एक एक कदम पर मेरे आंसू बह रहे थे और मुझे मेरे माँ बाप की आवाजें अपने कानों में गूंजती हुई महसूस हो रही थी। उन दोनों ने मुझे आगे बढ़कर हौसला दिया था और फिर मैंने अपने वालिदैन के कमरे का खुद दरवाजा खोला था। वहां उनकी कदादम फोटो फ्रेम होकर लगवाई गई थी और उस फोटो को देखकर मेरे सब्र का बंधन टूट गया था। मैं वहीं फूट फूट कर रो रही थी। इसी असना में मुझे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ था और मैंने मुड़कर देखा था। वो बैरिस्टर साहब मुझे हौसला दे रहे थे और इसी दौरान उन्होंने मुझसे सवाल किया था कि क्या ये सामने लगी तस्वीर में तुम्हारे माँ बाप मौजूद हैं। मैंने इस बात में सर हिलाया था और वो वहीं कुर्सी खींचकर बैठ गए थे। मैंने बगौर उनका रद्द अमल देखा था। वो बार बार अपने सीने पर हाथ फेर रहे थे। उनकी बेगम साहिबा उन्हें पानी पिला रही थी। मैं अपना गम भूलकर उन्हें देखने लगी थी। मैं घबरा गई थी कि उन्हें क्या हो गया है। मैंने उनसे पूछा था कि आप ठीक हैं, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि तुम्हारी माँ का क्या नाम था। मैं उनके अजीब सवाल पर थोड़ी देर हैरान जरूर हुई थी, लेकिन मैंने उन्हें बता दिया था कि मेरी माँ का नाम गुलबानो है और उन्होंने मेरे वालिद से पसंद की शादी की थी। मेरे वालिद का नाम सफीर अहमद था। उन्होंने अचानक से अपनी बेगम को देखा था और उनकी बेगम ने मुझे देखा था और उसके बाद न जाने क्या हुआ था कि उन अंकल ने आगे बढ़कर मुझे गले से लगा लिया था। मैं अचानक रद्द अमल पर बेहद घबराई थी। उनकी बेगम भी हंसते हंसते रो पड़ी थी, लेकिन मुझे कुछ माजरा समझ में नहीं आया था। तब उन्होंने जो कुछ मुझे कहा था मुझे समझ नहीं आया था कि मैं इस पर क्या रद्द अमल दूं। उन्होंने मुझे बताया था कि गुलबानो कोई और नहीं बल्कि मेरी बहन थी और वो बैरिस्टर कोई और नहीं बल्कि मेरे मामू थे। उनका नाम सुहेल हुसैन था। यानी कुदरत ने जाने अनजाने में मुझे अपने ननियाल से मिलवा दिया था। इस वक्त मेरी हालत ऐसी हो रही थी और इस कदर कैफियत दिल में गड़बड़ हो रही थी कि मैं उन्हें कोई नाम नहीं दे पा रही थी।
मैं बस खाली खाली निगाहों से उन दोनों को देखे जा रही थी और वो इतने अरसे बाद अपनी बहन की निशानी मिलने पर हंस भी रहे थे और रो भी रहे थे। उन्हें गम इस बात का था कि वो अपनी बहन से उसकी जिंदगी में ना मिल सके थे और वो यही समझती रही थी कि उनके माँ बाप और उनके भाई ने उन्हें माफ नहीं किया। जबकि बकौल सुहेल हुसैन के, जो कि अब मेरे मामू थे, वालिदैन ने तो उन्हें उसी दिन माफ कर दिया था और वो उन्हें याद करके रोते रहते थे। मैं भी अपनी बहन की कमी बेहद महसूस करता था, लेकिन कुदरत ने हमें ऐसा अलग किया था कि फिर दोबारा कभी मिलने का मौका ही न दिया था। और अब जब तुमसे मुलाकात हुई है तब हमें पता चला है कि वो तो इस दुनिया में ही नहीं रही। ये कहकर वो दोबारा रोने लगे थे। मुझे खुशी इस बात की थी कि कुदरत ने मुझे इतने बुरे हालात में मेरे ननियाल वालों से मिलवा दिया था। मैं अपने अंदर बिल्कुल भी हिम्मत महसूस नहीं कर रही थी और इतने बड़े घर में अकेले रहना तो मुझे बहुत ज्यादा दुश्वार गुजार लग रहा था। आखिरकार कुदरत को मुझ पर रहम आ गया था। मैंने उन्हें अपने ऊपर गुजरने वाले जुल्म की सारी दास्तान सुना दी थी और ये भी कहा था कि वो लोग अभी तक मेरे पीछे लगे हुए हैं और मैं उनसे छुपकर उनके घर से भागी थी, लेकिन मैं उन्हें सबक सिखाना चाहती हूँ। उन्होंने मेरे वालिदैन को भी दुखी पहुंचाया और अब मेरी जात को भी नुकसान पहुंचाने के डर पे हैं। मैं उनके खिलाफ केस लड़ना चाहती थी। मैंने उन्हें ये भी बताया था कि उन्होंने मेरे कराची वाले घर में घुसने की कोशिश भी की है और तमाम अहम कागजात, यहाँ तक कि मेरी माँ के तमाम जेवरात भी ये लोग चुरा कर ले गए हैं। मेरे मामू सोच में पड़ गए थे। उन्होंने मुझे फैसलाबाद चलने के लिए कहा था क्योंकि यहाँ अकेले रहना मेरी जान खतरे में डालने के बराबर था। मैंने उनसे कहा था कि मैं सिर्फ एक दिन यहाँ गुजारना चाहती हूँ और उसके बाद मैं उनके साथ चलने के लिए राजी हूँ। उन्होंने मुझे इजाजत दे दी थी और उस एक रात में मैंने एक एक लम्हा अपने वालिदैन को याद किया था। उनके बगैर जिंदगी जिंदगी नहीं बल्कि दोज़ख बन चुकी थी और इस दोज़ख में हर कोई मुझे सजा का फरिश्ता नजर आता था। लेकिन जब से मेरे मामू ने मुझे यकीन दिलाया था कि वो मेरी हर मामले में मदद करेंगे, तब मुझे थोड़ा सा हौसला हुआ था और अगले ही दिन हम दोबारा फैसलाबाद के लिए निकल गए थे। वहाँ नाना नानी मुझसे मिलकर बेहद खुश हुए थे और मुझे ऐसा लगा था जैसे मुझे दोबारा माँ बाप का प्यार मिल रहा है। मैं वहाँ भी अपनी आंखों को बरसने से रोक नहीं पाई थी। कुदरत ने एक ऐसा इंतजाम कर रखा था जिसके जरिए वो मुझे मेरे ननियाल से मिलवाना चाहती थी और ऐसा ही हुआ था। मैं अपनी जिंदगी के बदतरीन दिन गुजारकर अब काफी हद तक संभल चुकी थी। मामू ने हवेली वालों को नोटिस भेज दिया था और उस नोटिस में लिखा गया था कि जल्द अज जल्द हवेली को खाली कर दिया जाए। काफी दिन गुजर गए थे और उनकी तरफ से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया था। शायद वो लोग इस नोटिस को खाली खोली नोटिस समझ रहे थे और उन्हें अंदाजा नहीं था कि मैं 18 बरस की होकर ये सब कुछ कर सकती हूँ, जबकि उन्हें मालूम नहीं था कि मेरी पुश्त पर मेरे ननियाल वाले मौजूद हैं और खास तौर पर मेरे मामू, जो कि बैरिस्टर थे और अच्छी खासी महारत रखते थे। उन्होंने मुझे बहुत हल्का लिया हुआ था, इस वजह से उनके आगे इस नोटिस की कोई अहमियत नहीं थी। लेकिन जब मुकर्ररा तारीख गुजरने के बाद भी उन्होंने अदालत में अपनी सफाई पेश नहीं की, तब उन्हें दूसरा और आखिरी नोटिस भेजने के साथ साथ मैं खुद भी हवेली में मामू के साथ वहाँ मौजूद थी। वो लोग मुझे वहाँ देखकर हैरान रह गए थे। यहाँ तक कि चची जान ने तो आगे बढ़कर मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश भी की थी। बर वक्त मेरे मामू ने आगे बढ़कर उनका हाथ झटक दिया था। वो लोग सब मिलकर मुझे नफरत की निगाहों से देख रहे थे और मैं सीने पर बाजू लपेटे उन्हें भरपूर फातिहाना निगाहों से देख रही थी। उन 3 दिनों में मैं अपने ऊपर किए गए जुल्म को कभी नहीं भूल सकती थी। इसके साथ साथ मैंने थाने में ये शिकायत भी दर्ज करवा दी थी कि उन्होंने मुझे पागल करने की दवाइयां भी खिलाने की कोशिश की थी। मेरे साथ पुलिस भी मौजूद थी और चूंकि उन्होंने नोटिस का जवाब नहीं दिया था, इसलिए अब एक लीगल एक्शन लेने के लिए मैं उनके साथ वहाँ आई थी। पुलिस ने उनसे कह दिया था कि 2 दिन के अंदर ये हवेली खाली हो जानी चाहिए क्योंकि हवेली की मालका ऐसा चाहती है। इसके साथ साथ पुलिस ने उन्हें कहा था कि अब घर वालों के ऊपर चोरी का इल्जाम भी मौजूद है। आप लोगों ने हुरिया अहमद के कराची वाले घर में घुसकर वहाँ से अहम दस्तावेजात चुरा ली हैं, बल्कि उनकी माँ की आखिरी निशानी उनके जेवरात भी चुरा लिए हैं और इस इल्जाम पर तमाम घर वाले चौंक उठे थे। किसी को भी ये खबर नहीं थी कि इल्जाम सच्चा है, झूठा नहीं है। कोई भी यकीन नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि उन्होंने मुझे बुरा भला कहना शुरू कर दिया था और मैं चुपचाप सुन रही थी। जब उन्होंने भरपूर तरीके से अपनी भड़ास निकाल दी थी तो मेरी बोलने की बारी थी और मैंने जब बोलना शुरू किया था तो सब चुप होकर सुनने लगे थे क्योंकि मेरा लहजा इस कदर सख्त और पत्थर था कि किसी के बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मैंने उनसे कहा था कि आप लोगों में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। वो भाई जो सारी जिंदगी आप लोगों के लिए रोता रहा था और आप लोगों को याद कर करके उसने अपनी सेहत तबाह कर ली थी, जब आप लोगों ने उसे याद किया तो उसने फौरन से लब्बैक कहा था। हालांकि उसकी क्या गलती थी? उसकी गलती सिर्फ यही थी कि उसने पसंद की शादी की थी और उसने अपनी जायदाद अपनी औलाद के नाम पर कर दी थी। उसकी बस यही गलती थी और उस गलती की सजा उसे ये भुगतनी पड़ी थी कि इस घर में आने के बाद 18 साल पहले पसंद की शादी करने की वजह से उन्हें इस कदर ताने दिए गए, इस कदर उनकी दिल आजारी की गई कि वो इंतहाई रंजीदा हालत में घर से निकले थे और उसी हालत में उनका कार हादसा हो गया था और उसी हालत में वो इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। मेरे वालिदैन की मौत के जिम्मेदार आप सब लोग हैं क्योंकि आप लोगों के अंदर मालो दौलत की इतनी हवस है कि आपके सामने एक इंसानी जात की कोई वक़्त नहीं है। आप लोगों ने सिर्फ इस पर इक्तफा नहीं किया बल्कि आप सब लोगों ने उनकी अकलौती औलाद को सिर्फ हवेली के लिए न सिर्फ हब्से बेजा में रखा बल्कि दिमाग को गैर मुतवाजन करने के लिए दवाइयां भी खिलाई। खून के रिश्ते ऐसे भी होते हैं। अगर खून के रिश्ते ऐसे होते हैं तो फिर मैं उन 18 बरसों का शुक्रिया अदा करती हूँ जो कि मैंने इन रिश्तों के बगैर गुजारे। मैं थोड़ी देर चुप हो गई थी और गले में फंसे आंसुओं के गोले को मैंने अपने अंदर उतारा था।
جب میں نے ایک نظر اپنے ماموں پر ڈالی تھی اور اس کے بعد میں نے اپنا فیصلہ سنایا تھا، میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ مجھے اس حویلی سے کوئی غرض نہیں اور نہ اس حویلی سے میں پھوٹی کوڑی بھی لینا چاہتی ہوں۔ میں صرف اپنے باپ کی جائیداد آپ لوگوں سے لینے آئی ہوں جو آپ لوگوں نے چرا لی ہے، اور اگر آپ لوگوں کے علم میں نہیں ہے تو میں اتنا بتا دوں کہ رضیہ چاچی کو میں نے خود اپنی ماں کے تمام زیورات اور اہم فائل کھیتوں کے اندر چھپاتے ہوئے دیکھا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ ان کا یہ عمل انفرادی ہے یا آپ سب کا اجتماعی عمل ہے، لیکن میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ میرے باپ کی خون پسینے کی کمائی مجھے لوٹا دی جائے، تبھی میں حویلی سے دستبردار ہو جاؤں گی۔ اور اگر ایسا نہیں کیا گیا اور مجھے جھوٹا ثابت کیا گیا تو میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ میری چیزیں کہاں موجود ہیں، لیکن اگر میں عزت سے آپ تمام لوگوں سے یہ چیزیں مانگ رہی ہوں تو پھر آپ کو بھی اپنی عزت کی لاج رکھ لینی چاہیے اور یہ ثابت کر دینا چاہیے کہ آپ لوگ بھی اصول کے پکے ہیں، اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ میں اس حویلی سے دستبردار ہوتی ہوں صرف اس صورت میں جب مجھے میرے باپ کی جائیداد اور میری ماں کے زیورات واپس کیے جائیں گے۔ میں تھوڑی دیر رک گئی تھی تاکہ ان کا فیصلہ سن سکوں۔ وہ لوگ اپنی بات سے مکر گئے تھے۔ تب میں بے اختیار مسکرائی تھی اور میں نے پولیس آفیسر کو اشارہ کیا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر چچی جان کو گرفتار کر لیا تھا۔ جب میں نے انہیں کہا تھا کہ میں آپ سے اپنی امانت واپس مانگنے نہیں آئی تھی، بلکہ مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ میری امانت کہاں موجود ہے، میں وہاں سے اپنی امانت لے لوں گی، اور یہ حویلی آپ لوگوں کو ہی مبارک ہو، کیونکہ اس حویلی میں میرے ماں باپ کو اس دنیا سے رخصت کرنے والوں کی شکلیں دیکھ کر مجھے نفرت محسوس ہونے لگتی ہے۔ میں نے اسی وقت حویلی کی فائل اٹھا کر ان کے منہ پر دے ماری تھی اور چچی جان کو ہاتھ اٹھا کر وارننگ دی تھی کہ یہ تو صرف ان 3 دنوں کی سزا ہے جو آپ نے مجھے پہنچائی ہے، اس کے بعد بھی اگر آپ لوگوں نے مجھے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو پورا خاندان سلاخوں کے پیچھے ہوگا۔ اس کے بعد میں نے فخر سے اپنے ماموں کو دیکھا تھا جنہوں نے مسکرا کر مجھے حوصلہ دیا تھا اور میرے اتنے بھرپور انداز میں ان سب کے آگے ڈٹ جانے پر مجھے شاباش دی تھی۔ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ زندگی نے اتنا کچھ سکھا دیا تھا کہ یہ سب تو میرے لیے ایک معمولی سی بات تھی۔ میں اس حویلی کو کبھی بھی نہیں رکھنا چاہتی تھی، ان کی یہ حویلی انہیں ہی مبارک جن کی وجہ سے میرے ماں باپ کو زندگی سے ہاتھ دھونا پڑا تھا۔ اس کے بعد میں دوبارہ کراچی آ گئی تھی، حالانکہ میرے ننیال والے نہ مانے تھے، لیکن میں وہاں کس رشتے سے رہ سکتی تھی۔ لیکن ماموں نے اس کا بھی حل نکال لیا تھا، انہوں نے اپنے بیٹے کا رشتہ میرے لیے بھیج دیا تھا اور اب میں کسی صورت انکار نہیں کر سکتی تھی۔ میں ان کی اس محبت پر مسکرا دی تھی۔ انہوں نے اپنی بہن کو کھو دیا تھا لیکن ان کی آخری نشانی کو نہیں کھونا چاہتے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ اب زندگی تھوڑی بہتر ہونا شروع ہوئی ہے